ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ ناظرین، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاریخ اسلام کے اس معرکے کے سلسلے سے جسے ہم مباہلے کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں سن 9 ہجری یہ سن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اس کا سبب یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تبلیغ دین کر رہے تھے اور یہاں تک کہ اسلام مکے کی سرحدوں سے نکل کر باہر تک پھیلنے لگا، مصر، ترکی کے فرما رواں اور بادشاہوں کو آپ نے بہت سارے خطوط لکھے اور انہیں اسلام کے بارے میں لکھا، اسلام کی دعوت دی۔ وہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط نصارہ نجران کو بھی لکھا۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بہت آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ تاریخ اسلام میں سن 9 ہجری یہ سن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا سبب اور ریزن یہ ہے کہ اس سن کو عام الوفود کہتے ہیں۔ عام الوفود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سن 9 ہجری میں بہت سارے وفود، بہت سارے ڈیلیگیشنز پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بہت سارے ان میں سے سرحد اسلام میں داخل ہوئے۔ ناظرین، یہ سن 9 ہجری کا ہی واقعہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط نصارہ نجران کو لکھا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نجران جو اس وقت سعودی عربیہ کا ایک شہر ہے، یہ شہر یمن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس وقت یعنی سن 9 ہجری میں جب مباہلہ واقع ہوا ہے تو پیغمبر اکرم نے جو خط لکھا تھا، نجران اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا معبد یعنی عبادت گاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تھی، اور اس عبادت گاہ میں ان کے یعنی عیسائیوں کے بہت بڑے بڑے پیشوا اور رہنما رہتے تھے۔ انہی میں جو ان کا سب سے بڑا پیشوا اور رہنما جس کا نام ابو حارث تھا، جب پیغمبر اکرم نے ابو حارث کو خط لکھا تو اس نے پہلے ہی سے، یا یوں کہا جائے کہ نجران کے لوگ اپنی کتابوں میں پہلے ہی سے آخری نبی کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ اب جب خط ملا تو اس نے اپنے جو وہاں کے معتبر لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے دین پہ عمل کرنے والے، ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی۔ ان لوگوں نے یہ پاس کیا کہ ہم مدینہ جائیں گے اور مسلمانوں کے رسول محمد سے ملاقات کریں گے۔ تقریباً 60 لوگوں پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ مدینہ آیا۔ جب نجران کا یہ ڈیلیگیشن مدینہ آیا تو اس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تھے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران کا استقبال کیا اور ان کے لیے خیمے نصب کرائے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم اور نصارہ نجران سے گفتگو ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی، اور نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ نماز تمام ہو گئی۔ اب جب نماز تمام ہو گئی تو نصارہ نجران اور ان کا سردار ابو حارث پیغمبر کے پاس آیا، اور آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ ناظرین، نصارہ نجران سے جو تاریخ اسلام میں مباہلہ ہوا ہے اس کا صرف اور صرف ایک سبب تھا۔ وہ سبب یہ تھا کہ نصارہ نجران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔
और उनकी ये दलील थी, वो ये कहते थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, जबकि पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसारे नजरान से कहते थे कि देखो ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं बल्कि ईसा अल्लाह के नबी हैं। बस इसी बात पर बहस होती रही, यहाँ तक कि नसारा नजरान और उनके जो उलमा थे उन्होंने अपनी बड़ी दलीलें दी और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह रहे थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। उनका ये दावा था कि ईसा बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए हैं। दूसरी बात वो कहते थे कि ईसा ने अंधों को आंखें दी। तीसरी बात ईसा ने मुर्दे जिलाए। ये सारी बातें उन्होंने पैगंबर अकरम से कही और फिर कहा कि इसलिए ईसा अल्लाह के बेटे हैं। जब उन्होंने पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा तो पैगंबर ने कहा, भाई अगर तुम ये कहते हो कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उसका सबब, उसका रीज़न ये है कि ईसा बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए हैं, तो फिर ये बताओ कि आदम के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है? आदम भी तो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए हैं। लेकिन पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दलील देते रहे, लेकिन नसाराए नजरान अपनी हट धर्मी पे अड़े हुए थे। वो इसी बात को बार बार दोहरा रहे थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं और पैगंबर ये कह रहे थे ईसा अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। कुरान की एक आयत आ गई कि पैगंबर आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम ये कहते हो कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं इसलिए कि तुम ये कह रहे हो कि ईसा बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए हैं, इसी वजह से तुम ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो, तो फिर ये बताओ कि अल्लाह ने आदम को भी बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, फिर उनके बारे में क्या ख़याल है? पैगंबर दलील पे दलील देते रहे, लेकिन नसाराए नजरान को ना मानना था। नसाराए नजरान ना माने और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि नहीं, ईसा अल्लाह के नबी नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे हैं। आखिर में जब यहाँ तक बात पहुँच गई तो एक मरतबा पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यह आयत आई कि फ़कुल तालो नदओ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। नाज़रीन, ये आयत सूरह आले इमरान की है। जब नसारा नजरान बहुत ज़्यादा बज़िद हो गए कि नहीं ईसा अल्लाह के बेटे ही हैं, तब अल्लाह की तरफ से पैगंबर को ये हुक्म हुआ कि ऐ पैगंबर, अब आप इनसे बहस ना कीजिए, अब इनसे आप मुबाहिला कीजिए। नाज़रीन, मुबाहिले के माना ये होते हैं कि जहाँ दो गिरोह, दो ग्रुप बैठ जाता है, बैठने के बाद अल्लाह से दुआ करता है कि परवरदिगार आलम जो झूठा है उस पे तू अजाब नाजिल कर दे। पैगंबर अकरम ने उनसे कह दिया कि सुनो, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। लाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और कहते हैं परवरदिगार, और जो झूठा है तू उस पे अजाब नाजिल कर दे। तारीख़ ये बताती है कि एक दिन मुअय्यन हुआ, यहाँ तक कि वो वक्त भी आ जाता है कि जब नसारा नजरान चले गए और पैगंबर भी चले आए और रात की तारीकी में नसारा नजरान आपस में बैठ के गुफ्तगू करने लगे। याद रखना कि मोहम्मद अपने असहाब के साथ आ रहे हैं और शोर गुल करते हुए आएँ तो फिर हम मुबाहिला कर लेंगे, अगर मोहम्मद अपने घर वालों के साथ आते हैं तो फिर हम मुबाहिला हरगिज़ नहीं करेंगे। नाज़रीन, यहाँ तक कि जिस दिन मुबाहिले की तारीख़ थी यानी 24 ज़िलहिज्जा सन 9 हिजरी, पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ हज़रत इमाम हुसैन को लेते हैं, हज़रत इमाम हसन को लेते हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेते हैं और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लेते हैं। मुबाहिले के लिए चल देते हैं। अब पैगंबर का अंदाज़ ये है कि पैगंबर ने अपने दोष पे काली चादर डाल ली और अपनी गोद में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ले लिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 5 साल थी और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 6 साल थी। गोद में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगंबर ने लिया और उंगलियों को पकड़े हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की चल रहे हैं। उस वक्त हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल थी। यानी अंदाज़ पैगंबर का ये था कि गोद में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिया है और हज़रत इमाम हसन की उंगली को पकड़े हुए हैं, बीच में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हैं और सबसे पीछे हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। अब जो दूर से नसाराए नजरान ने पंजतन को आता हुआ देखा, एक मर्तबा घबरा गए। जो सबसे बड़ा राहिब, सबसे बड़ा आकिब, सबसे बड़ा सैयद था, उसने नसाराए नजरान से कहा कि देखो, हमने पहले ये कह दिया था कि अगर मोहम्मद के साथ उनकी आल आएगी तो हम मुबाहला हरगिज़ नहीं करेंगे, और अगर उनके साथ असहाब या और लोग आते हैं तो मुबाहला कर लेंगे। खुदा की कसम, मैं ऐसे ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। तो उन्होंने अपनी किताब में देखा, देखने के बाद कहा हम मुबाहला हरगिज़ नहीं करेंगे। याद रखना कि अगर मुबाहला हो गया तो इस रूए अर्ज़ पर, इस ज़मीन पे कोई ईसाई नहीं बचेगा। यही सोच के उन्होंने कहा हम मुबाहला नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि हज़रत अली, चाहे बद्र हो, उहद हो, खैबर हो, खंदक हो, हर मकाम पे हज़रत अली सबसे आगे आगे थे। लेकिन क्या फ़लसफ़ा था पैगंबर का कि पैगंबर ने हज़रत अली को मुबाहले में सबसे पीछे रखा। क्यों? इसलिए कि अगर हज़रत अली को पैगंबर आगे कर देते तो फिर दुनिया ये लिख देती कि भाई मुबाहला, नसाराए नजरान ने मुबाहले में अपनी हार इसलिए मान ली कि उन्होंने अली को देख लिया था। वो अली की जो बद्र में आगे रहे, उहद में आगे रहे, खैबर व खंदक में आगे रहे, इसलिए वो डर गए और डरने के बाद उन्होंने अपनी हार मान ली। दुनिया ये लिख देती। इसीलिए पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को सबसे पीछे रखा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे आगे रखा, ताकि दुनिया समझ जाए कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं बल्कि हसन और हुसैन के किरदार से फैला है। अब जो नसारा नजरान ये मंजर देखा, पैगंबर के पास आए और कहने लगे कि ऐ मुसलमानों के नबी, हम इस बात पे राज़ी हैं कि आपको जिज़िया दे रहे हैं, हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये तारीख़ 24 ज़िलहिज्जा हमारे लिए बहुत ही खुशी की तारीख़ है। ये तारीख़ बहुत ही अजीम तारीख़ है। अगर हम तारीख़ इस्लाम को पढ़ें तो हमें ये बात बहुत ही आसानी से मिल जाती है कि तारीख़ इस्लाम में कभी भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने किसी पे ज़बरदस्ती नहीं की। क्यों? इसलिए कि कुरान का ये फ़ैसला है, कुरान का ये ऐलान है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। ये सही रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता तुम्हें दिखा दिया गया है, ये अब तुम्हारी मर्ज़ी है। चाहे तुम सीधा रास्ता अख्तियार करके जन्नत में चले जाओ, गलत रास्ता अख्तियार करके तुम जहन्नम में चले जाओ। पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल, यहाँ तक कि आखिरी इमाम तक, नाज़रीन, हमेशा जहाँ जहाँ भी इस्लाम जिन जिन सरहदों में दाखिल हुआ, ये सिर्फ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का किरदार था, अखलाक था कि जो आपने दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर को पेश किया। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है तमाम आलम इस्लाम को। अगर हम इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने किरदार और अखलाक को इतना अच्छा और इतना बेहतर बनाएं कि दुनिया हमारे किरदार को देखकर मुतासिर हो जाए और वो ये समझ जाए कि मोहम्मद अरबी का मानने वाला है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मानने वाला है। हमेशा सच्चाई, हक, इंसाफ, अदल से काम लें, कभी किसी को फरेब, धोखा किसी के साथ न करें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पे चलें। और जिस दिन हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पे चलना शुरू कर दिया, उस दिन हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी। वलिल्लाहिल हम्दु व शुक्र अव्वलन व आखिरन। खुदा हाफिज़।